ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दिए जाने के सबब कल रात ही एक्साइज पुलिस की जानिब से शराब की दुकानों में मौजूद स्टॉक का जायज़ा लिया गया। कल रात एक्साइज पुलिस ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक शराब की दुकान पहुंचकर दुकान में मौजूद शराब के स्टॉक का जायज़ा लेकर दुकान को मुहरबंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ये देखना चाह रही है कि लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के बावजूद किस दुकान में कितनी शराब ब्लैक में बेची गई है। मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक लॉकडाउन से पहले दुकानों में जितना स्टॉक था, लॉकडाउन के दौरान उसमें से तकरीबन 70% स्टॉक दुकानों से गायब पाया गया है। ఐఆర్ ఆఫీసర్స్ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ప్రకారం మేము స్టాక్స్ ఎంత ఉందనేది ఫిజికల్గా వెరిఫై చేసి మేము రిపోర్ట్ ఐఆర్ ఆఫీసర్స్కి ఇస్తున్నామండి. అంతే క్వాలిటీ వైజ్ రాసుకున్నామండి. ఒక కాపీ లైసెన్స్కి ఇస్తున్నాం, ఒక కాపీ మా దగ్గర ఉంటుంది. స్టాక్ ఎంత ఉందనేది బ్రాండ్ వైజ్ మేము అన్నీ చెప్పలేమండి, కొన్నట్టు మీకు ఇస్తాను. ఓకే. GHMC मेयर बी राम मोहन ने आज रुकन असेंबली M गोपीनाथ के हमरा पंजागुट्टा स्टील ब्रिज और शेखपेट में तामीर हो रहे ब्रिज के जारी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC के आला अहदेदारों के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR की हिदायत पर अमल करते हुए लॉकडाउन के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों और ब्रिजों के तामीरी काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CRMP రోడ్స్ ఉన్నాయి. మరి దాదాపు 7 ఏజెన్సీలు చేస్తున్న రోడ్డు ప్రోగ్రామ్ వరకు CRMP కాంప్రెసివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ హైదరాబాద్లో ఏదైతే ఉందో 7 ప్యాకేజెస్లో దాదాపు 300 కిలోమీటర్లు మనం మరి దానికి టార్గెట్ పెట్టుకుంటే దాదాపు 210 కిలోమీటర్ల పైన రోడ్ వర్క్ కూడా మరి పూర్తి స్థాయిలో వర్క్ డన్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో క్యాంబరింగ్ కానీ మరి ఇలా రోడ్ లెవెలింగు, అదేవిధంగా రోడ్ ఎక్కువ మందం ఉన్న దగ్గర మిల్లింగు, మరి ఆ కర్వింగు, మరి ఇలా ఫుట్పాత్ వర్క్, మరి మీడియం మెయింటెనెన్స్, మరి స్వీపింగ్ సంబంధించి అన్నీ కూడా మరి ఇలా CRMP ప్రోగ్రాంలో భాగంగా బాగా నడుస్తున్నాయి. దాంతోపాటు GHMC మెయింటెనెన్స్ వర్కులు, గల్లీ రోడ్స్, కాలనీ రోడ్స్ అన్నిటి కూడా ఏకకాలంలో దాదాపు 200 కోట్ల రూపాయలతోటి మరి టెండర్స్ అన్ని అవి కూడా కావడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా రోడ్ వర్క్లన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద పూర్తి చేయమని చెప్పి మున్సిపల్ మంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్లో నలుమూలల ఎటు చూసినా కూడా ఇదే రకమైన వాతావరణంతో మరి అలా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధుల ఎమ్మెల్యేల సహకారంతో మరి హైదరాబాద్ రోడ్లన్నీ కూడా లాక్డౌన్ పీరియడ్ పూర్తయి హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు రోడ్డు మీదకి వచ్చే లోపల మరి రోడ్లన్నీ కూడా అద్దంలా తీర్చిదిద్దాలి. రోడ్లన్నీ కూడా పాటోల్స్ కానీ మ్యాన్హోల్స్ కానీ ఏమవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలన్న దాంట్లో ఇలా GHMC వాటర్ వర్క్స్, HMDA, మరి అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్స్, HRDC, మరి అదేవిధంగా కొన్ని రోడ్స్కు లింక్ రోడ్స్, మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్స్ కూడా పూర్తి చేయాలన్న దాంట్లో హైదరాబాద్ రోడ్ కార్పొరేషన్ మరి ఇలా HRDCల ఆధ్వర్యంలో కూడా మరి కొన్ని రోడ్లు మరి ఇలా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు కూడా నిన్న షేర్లింగపల్లి మొత్తం కూడా తిరగడం జరిగింది, ఇలా కుక్కట్పల్లి తిరగడం జరిగింది. దాంట్లో మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్స్ అన్ని కూడా పూర్తి చేస్తే ట్రాఫిక్ ఈజ్ అవుట్ అయ్యి ప్రీ లెఫ్ట్లో పోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా ఏకకాలంలో హైదరాబాద్ నగరంలో హైదరాబాద్ రోడ్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. माइग्रेंट लेबर्स का अपने मुकामात को जाने का सिलसिला जारी है। कल रात टप्पा चौपुत्रा पुलिस की निगरानी में तकरीबन 90 अफराद अपने आबाई मुकाम रवाना हुए। इस मौके पर माइग्रेंट लेबर्स को उनके अफराद ख़ानदान के साथ बसों के ज़रिए मेडचल रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। मुनीन प्रसाद नामदेव है। मैं मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तेलंगाना स्टेट बहुत अच्छा काम किए और यहाँ टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन जो भी मतलब सर लोग हैं बहुत अच्छा केयर किए हैं, हम लोग अच्छे से भिजा रहे हैं। यही मेरा सर अनुरोध है, मतलब अच्छा काम किए हैं। प्रसाद चतुर्वेदी है, मैं MP सतना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तेलंगाना सरकार जो भी किया अच्छा किया सर, सबको सुविधा के साथ पहुँचा रहा है स्टेशन तक, जो जहाँ जैसे सुविधा है करा रहे हैं। तो यह टप्पा चबूतरा के जो पुलिस स्टेशन वाले सर लोग हैं वो भी बड़ी सुविधा के साथ सबको छोड़वा रहे हैं स्टेशन तक। जो भी है अच्छा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोगों के द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा, सुविधा से हो रहा। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा अमान नगर के ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए। इससे पहले सोहेल खादरी ने मुकामी पार्टी लीडर अबू याफाई के हाथों पंजाशाह ईरानी गली में 30 से ज़ायद राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मज़ीद तफसीलात बताई। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी इलाके में आज भवानी नगर पुलिस स्टेशन के अकबी हिस्से में रहमत नगर में और अमान नगर में ये नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस
रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मजलिस की जानिब से गरीब लोगों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में आई। आज एरिया कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब भी इस मौके पे मौजूद है। अभी घरे घर जाकर ये पैकेट्स उन घरों में हर फर्द के हवाले किए। बहरहाल इमदादी कामों का सिलसिला मजलिस की तरफ से जारी है। इंशाअल्लाह जो हजरात को नहीं मिले हैं उनको फिर मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं हर तरह से हर एक को ये इमदाद पहुँचे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोरोना वायरस के वबा के मौके पर हर इलाके में जाके इमदादी काम जारी रखे हुए अवाम नक़ीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज नानानगर डिवीज़न के न्यू हकीमपेट और दीगर इलाकों में ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और मजलिस के दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। कौसर मोहिउद्दीन ने करीब 150 ज़रूरतमंद फैमिलीज़ में ये राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम करने की सदर मजलिस की हिदायत पर अमल करते हुए एम्पायर ग्रुप के ज़िम्मेदारान की जानिब से आज रहमत नगर याकुतपुरा हल्का असम्बली में रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी के हाथों राशन किट्स और तरकारी के पैकेट्स तकसीम किए गए। बड़ी तादाद में लोगों के दरमियान ये राशन किट्स और तरकारी तकसीम की गई, जिस पर आवाम ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब सैयद इमरान साहब ने इसका एहतमाम किया, उनके तमाम साथियों दोस्तों अहबाब ने। और यहाँ एरिया कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब भी मेरे साथ हैं, तमाम मजलिस के चाहने वाले हैं। हमारे इमरान साहब की ये सरगर्मियाँ दीगर इलाक़ों में कई दिन से जारी है और बेशुमार लोगों को उन्होंने इमदादी अनाज के पैकेट तकसीम किए। और आज यहाँ पर हमारे हल्के में रहमत नगर इलाके में जो नहायत ही पसमानदा गरीबों का एरिया है, वहाँ पर उनकी तकसीम अमल में आई। और तवक्को करता हूँ कि आपकी ये सरगर्मियाँ जो कार खैर में शामिल होती है, जिसको अल्लाह अजर देता है, ये जारी रखें। हमसे किसी किस्म की भी जब ज़रूरत पड़े हम मदद करने के तैयार हैं और ये सिलसिला इनका जारी है, आइंदा भी जारी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे अहबाब जो साहिब इस्तिताअत है, गरीबों को इस दौर में, इस वक्त में नाजुक हालत में जो मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको इनकी सलामती दराज़ी उम्र के लिए परवरदिगार हमारी इल्तिजा को कबूल करे। हैदराबाद के इलाके गोशा महल में भी ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है। गोशा महल डिवीज़न TRS लीडर नंदू बिलाल ने आगापुरा में 500 से ज़ायद राशन किट्स ज़रूरतमंदों में तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। जामबाग डिवीज़न क्षेत्र में आज शांति नगर, भरत नगर, सेवक नगर, अम्बेडकर नगर के चारों जो स्लम बस्तियां हैं, जहां पर हमाली है, मजदूर है, जो डेली वेजेस पर जीने वाले लोगों को आज हमने करीब 600 से 700 गरीब मजदूरों को, गरीब परिवारों को हमारे ट्रस्ट से मदद की है। मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आप लोग घरों में रहे, गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो करें। चप्पा चप्पा, बस्ती बस्ती में हमारे पार्टी के वर्कर घूम रहे हैं। आपके सुख में दुख में हम काम आ रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ भी आपको मुसीबत होगी तो हम आपके साथ रहेंगे। और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर में रहे, सेफ रहे। भाई नंदकिशोर व्यास बिलाल जी के द्वारा जामबाग डिवीज़न में राशन वितरित किया गया। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम जिस भी डिवीज़न में राशन वितरित करेंगे वो बूथ के हिसाब से जाएंगे तो सभी घरों में सभी ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकेंगे। और उसी आधार पर हम सब लोग बूथ के हिसाब से ही, उनके कहने पर बूथ के हिसाब से जाकर के लोगों के घरों में ज़रूरतमंद लोगों को राशन भेज रहे हैं और ताकि सभी को हेल्प हो सके। बोधन रुकन असम्बली आमिर शकील ने सुबह सहर के औकात में पके हुए खाने के पैकेट्स तकसीम किए और कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवाम को घरों में ही रहते हुए माह सियाम में दुआएं करने की अपील की। बता दें कि रुकन असम्बली आमिर शकील की जानिब से राशन तकसीम करने के अलावा ज़रूरतमंदों में रोज़ाना सहर और इफ्तार में पके हुए खाने की तकसीम भी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात का एहसास करते हुए उनकी जानिब से अजनास की तकसीम के अलावा ईद उल फितर के लिए खुसूसी पैकेज बनाया जा रहा है, जो रमज़ान के दूसरे अशरे में तकसीम किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से परेशान ज़रूरतमंदों का एहसास करते हुए शहर हैदराबाद में कई NGOs और अहल खैर हजरात की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। ऐसा ही एक NGO वन स्टेप ह्यूमैनिटी, जो समाजी फलाही कामों में सरगर्म है, की जानिब से लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस मौके पर
वन स्टेप ह्यूमैनिटी के ज़िम्मेदार मोहम्मद मखदूम शाहनवाज ने अपील की है कि अहले खैर हजरात अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और मोहल्लों में मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल करें ताकि इस मुश्किल वक्त में सबकी मदद हो सके और कोई भूखा ना रहे। उनका कहना था कि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो खुद से अपनी ज़रूरत ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों की निशानदेही करते हुए उनके घरों तक मदद पहुंचाई जाए। हम लोग लॉकडाउन जब से शुरू हुआ उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोग में राशन बांटने का काम शुरू करें। शुरू में तो खैर बहुत छोटे पैमाने पे शुरू करा, लेकिन मैं जब देखना शुरू किया कि इतने लोग परेशान होते जा रहे हैं तो उस सिलसिले से मैं बढ़ाते गया। पहले अपना पर्सनल जितना था ख़त्म किया, फिर जो अरेंज कर सकता था मैं वो किया, फिर अपने चंद दोस्त रिश्तेदार और ख़ास तौर पे मैं मुबारक रिश्ते चलाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स हैं हमारे पास जो माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन भी करे वो लोग, और मेरे दोस्त रिश्तेदार भी काफ़ी अच्छा ताउन किए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग एक 3000 के ज़्यादा राशन पैकेट्स बांट चुके हैं। इसके अलावा हम लोग तरकारी भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह कल या परसों से मैं इफ्तार के लिए फ्रूट्स का भी सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। मेरा बोलना ये है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग मिलकर करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको कोई मेरे साथ ताउन करो बोलने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ओनर हमीद और रफ़ीक ब्रदर्स की जानिब से कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े पंच भाई अलावा में क़ायम किए गए रेड जोन के इलाके में मुकीम 40 घरों में राशन की तकसीम की गई। इस मौके पर कुलसुमपुरा CI के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहसिन किराना स्टोर एरिया में कंटोनमेंट एरिया में ये कंटोनमेंट में अशफाक का होने से लगभग 20 दिन ज़्यादा हो रहा जब से ये कंटोनमेंट जोन बना हुआ है। जब से बाहर वाला अंदर वाला बाहर जाने के लिए बहुत पूरा 4 रास्ता भी क्लोज़ करा हुआ है। जब से थोड़ा लोगों की परेशानी में है, हम लोग भी ट्राई करा बांटने के लिए। हमारे एक नहीं हुआ, हमारे बड़े दिलदार और बड़े आदमी अमित भाई और रफ़ीक भाई उन लोगों को फ़ोन आ गया तो इमीडिएटली फौरन एक 40 पैकेट लगभग 40 पैकेट मोहसिन किराना जितने भी गरीब लोग हैं, नीडी पीपल्स है, कि बाहर जाने के मुश्किल हो रहा है उन लोगों को सब लोगों को 16 आइटम टोटल ड्राई रेशन मटेरियल सब लोगों को बांटे, और उस अशफाक का फैमिली की, जावेद का फैमिली की, सब लोगों को पूरा मिला के 40 लगभग बांटा हुआ है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें महकमा सेहत के अहदेदार और पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की हिदायत दे रही है और सरकारी एम्बुलेंस में ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली सरकारी दवाखाने में एक खातून को डिलीवरी के बाद नौमौलूद बच्चे समेत घर जाने की इजाज़त दी गई, जिन्हें 102 एम्बुलेंस के ज़रिए उनके घर पहुँचाया गया। ताहम एम्बुलेंस में लोगों को इस तरह बिठाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं किया गया। आसिफ नगर और बस एक ही तो पूरा आसिफ नगर के आप लोग पूरा आसिफ नगर के हाँ आसिफ नगर जुर्रा आसिफ नगर के पूरे लोगों के हाँ एक ही साइड लॉकडाउन के दौरान आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक राउडी की जानिब से मुबैना तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक सैयद अली गुड़ा में मंगल की शाम एक गली के बंद रास्ते को खुलवाने के लिए राउडी शीटर DSP शरीफ की जानिब से मुकामी लोगों के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया। मुतासिर अफराद का कहना है कि उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से इजाज़त लेते हुए रास्ता बंद किया था, ताहम DSP शरीफ की जानिब से रास्ते के खोलने के लिए हरासा किया जा रहा था और कल शाम इस राउडी DSP शरीफ के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। लकड़ियाँ मैंने जब से वो लोग हमारे साथ बहुत किरकिर कर रहे बच्चों के साथ, हमारे कहीं को बन रहे खोलो बोल के बहुत टॉर्चर दे रहे हमारे। सर्कल साहब से परमिशन लेके हम लोग बनने लगाए, बनने लगा के बाद में इनका जुल्म है खोल दो के धूम कर रहे हैं हमारे साथ। DSP शरीफ कहते हैं उन्होंने, राउडी शीटर है कहते हैं उन्होंने, हमको नहीं माना, मगर उन्होंने ऐसा हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म कर रहे।
अभी से बहुत दिन से कर रही है, बने जब से 1.5 महीने से हमारे साथ यही हालत कर रही है। आज बोलते समय हमारे बच्चों को भी मारे और मेरे को भी ढक्कल दिए, मेरे को भी मारे। हम वो सर्कल साहब से परमिशन लिए, सर्कल साहब से परमिशन लेके ठीक है जी तुम्हारे घर में पेशेंट है ना, तुम लगा लो, 5 फीट की गली है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम लगा सकते हो, वायरस का भी चल रहा ना बोल के सर्कल साहब परमिशन दिए। देने के बाद भी ना ये टॉर्चर है हमारे को पूरे, ये टॉर्चर फुल देने के, उसके साथ ना 20-25 बच्चे रहते सो रोज़ बैठे, वो पूरी टीम बना लेके आज पूरा आके लकड़ियाँ तोड़े। हम लोग जाके बोले लकड़ियाँ लेके तोड़ रहे भाई, बोले तो मारना शुरू कर दिया हमारे को। हर बार बोल रहा तुम लोगों को खोलो बोल के, ये समझ में नहीं आता बोल के आज मारना शुरू कर दिए। और ऐसा मारे पूरा ये इंजर्ड हो गया मेरा पैर, और ये पाइपा लेके आए, रॉडा लेके आए और एक तलवार निकाल के लाए साहब अंदर से। अगर वहाँ कैमरा है ना, तो अगर वो गली में कैमरा है, वो शरीफ के घर में भी कैमरा है, DSP शरीफ जो है रॉडी शीटर, उसके घर में भी कैमरा है। अगर वो कैमरे में है तो कौन लटा लाए कौन स्टिका लाए मालूम हो जाता साहब। आज शाम शहर हैदराबाद में अचानक हुई बारिश से आवाम ने गर्मी से राहत की सांस ली। महकमे मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कान हैं। हैदराबाद, जगतियाल, भूपालापल्ली, मंचिर्याल, महबूबनगर अजला के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की ता औसत बूंदाबांदी के अलावा औसत दर्जे की बारिश और बिजलियाँ चमकने के खवी इम्कान हैं। मौसम में आई अचानक तब्दीली की वजह से दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। यूएई में एक बिल्डिंग में लगने वाली आग और उसके मनाजिर तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। फ़िलहाल खबर है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि 7 अफराद इस हादसे में मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़े एक कसीर मंजिला इमारत में मंगल के रोज देर रात आग लग गई। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आपको टावर नामी रेसिडेंशियल टावर में पार्किंग के अलावा 49 फ्लोर हैं। शारजा सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि शारजा के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10:40 तक टावर को आग लगी हुई थी। आग से 7 अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जिनका करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आग से इलाके में खड़ी मुतादिद कारों को भी नुकसान पहुंचा। आग लगने के फौरी बाद इन फ्लैटों और निचली मंजिल में दुकानों को खाली करा लिया गया था। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कोरोना से सेहतयाब होकर प्लाज्मा देने वाले तबलीगी अफराद की दिल्ली सरकार ने की हौसला अफजाई, जमात के अरकान को दिए अवार्ड्स। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से जरूरतमंदों की इमदाद का सिलसिला जारी। शदीद बारिश में भीगते हुए भी राशन पैकेट्स ले जा रही गाड़ियों को किया रवाना। चालीस दिन बाद तेलंगाना में खुली शराब की दुकानें, दुकानों के पास आवाम का हुजूम। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, खवातीन की बड़ी तादाद भी शराब खरीदने दुकानों पर आई नजर। अपने अपने हलकों में मजलिस अरकान असेंबली की सरगर्मियां जारी, जरूरतमंदों में पहुंचाया जा रहा है राशन। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से आवाम को मिली राहत। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश ख्यासी। यूएई में एक बिल्डिंग में लगी भयानक आग से मची सनसनी, दिक्कतों के बाद पाया गया आग पर काबू, 7 अफराद हुए मामूली तौर पर जख्मी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।